Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Leo Ascendant and the predictions for the month of September 2023. So for your Ascendant, the Ascendant Lord Sun is going to occupy the first house till 15th of September, which is going to give rise to a lot of ego, and that is something which you need to control in the first half of September. Since you are a natural leader, you should avoid indulging in power games with your peers that are based on ego. You have a gifted ability to delegate at the workplace, and that is why you rise higher in the corporate hierarchy. And you should utilize this ability to the maximum during this month of September. Mercury is the lord of your second and 11th house, and both of them are money generating houses. Mercury is also going to be placed in your ascendant. So, whether the second house lord is placed in first or vice versa, both of these combinations are an excellent placement for generating money through self effort. And this is going to be a very good time for you financially. If we talk about specific time frame, then the time from 4th to 6th of September is going to be excellent if you see from the cash flow perspective, and you will also get an opportunity to enjoy the company of your family during this time frame. The fifth house lord Jupiter is going to be positioned in your house of luck along with Rahu. Jupiter from here is going to aspect your first house and is going to bring a lot of stability in your profession, and it is also going to aspect your fifth house with the ninth aspect. So if you want to spend time with your children, then 14th to 16th of September is the ideal time for you to do so and mend your relationships with your kids. Jupiter also rules over your speculative tendencies, and all those people who are engaged in speculation or stock market will see an excellent time from 14th to 16th of September. If you are a student, then also middle of the month is going to be very beneficial for you to appear for competitive exams. Jupiter, which is placed here in the ninth house, will protect your progeny. So if you are planning for one, time till April 2024 is extremely favorable from the conception point of view. Saturn is the lord of your service and is going to be placed in the seventh house, and it is going to give you an opportunity in the month of September to rise and shine at your workplace. So if we talk specifically, then time frame from 21st to 23rd of September is exceptionally good for you, especially if you are in a service or a job. In the month of September, the Saturn and Sun opposition is going to take place in the first half of September. That is why you are going to experience ego tussles with your spouse. Since Sun is going to be in the first house, you will be riding high on the ego, but your spouse is going to give you a cold shoulder in this month, which will further accentuate the problem between you. So, this is the right time for you to take a back seat and not to tangle with your spouse. Otherwise, it will become a problem arena for you, especially in the first half of September. Mars is going to be placed in your second house, and people who are engaged in the sectors that are related to petrochemicals, defense, and specialty chemicals, they will see a positive time in their domains. The flip side of Mars placement here is that you need to avoid aggression while talking to your family members, and Mars is going to fuel your speech with a lot of aggression, which may end up hurting people who are near and dear to you. Venus is the lord of your profession, and all the Leo ascendant people usually have a very beautiful workplaces. Venus is going to be in a retro position in the 12th house for you. 12th house is considered extremely good for Venus because it contributes to riches for an individual, and in this case it is going to be in its favorite sign, which is a full water sign, Cancer. So chances are very bright that you will end up traveling to a foreign country in this month for work, especially between 5th to 7th of September, because the exchange of the 10th house and 12th house lord is going to take place. Moon is going to be in your 10th house, and Venus will be occupying the 12th house, so they will be exchanging signs. As a result, this is going to be a very beneficial time for you, especially for traveling to a foreign country due to work.
So 5th to 7th of September are these 3 dates where you may go to a foreign country. Now there are also certain days where you need to remain cautious. You should avoid taking any key decisions and you should also avoid arguments with people around you. So these dates for you in the month of September are 17th to 20th of September and 24th to 27th of September. Just be cautious during these 8 days. If you look overall, you are passing through a very good time frame, and the only thing that you need to keep in control will be your ego. So that's the summary for you for this month. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम लग्नेश पर नज़र डालें तो सूर्य जो कि आपके लिए लग्न स्वामी हैं, ये सितंबर के महीने में पहले हाफ तक लग्न स्थान में ही बैठे रहेंगे। तो जब भी सूर्य लग्न स्थान से निकलता है तो व्यक्ति में बहुत अहम जगह के जाता है। व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ बड़ा हस्ती है, जिसकी वजह से वो उसका लोगों के साथ टकराव होता है आपस में। तो यहाँ पर आपके लिए जो एक कुंजी है सितंबर के महीने में, वो ये है कि आपको अपनी अहम को कंट्रोल करके रखना है। खास करके आपके अपने कार्यस्थल पर अपने पीयर्स के साथ जो भी टकराव होते हैं, जिसे हम पावर गेम्स कहते हैं, जिसमें लोग अपनी ईगो पे बात ले लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, वो सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जो जितने भी सिंह लग्न के लोग होते हैं, इनमें से काफ़ी लोग आपको कॉरपोरेट्स में ऊपर के लेवल पे दिखाई देते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज, एमडीज वगैरह इस लग्न के होते हैं, क्योंकि सिंह लग्न के लोगों को दूसरों से काम करवाने का बहुत अच्छा एबिलिटी होता है। जितने भी आपके लग्न हैं 12 के 12, उनमें अगर सबसे अच्छा कोई व्यक्ति दूसरों से काम करवा सकता है तो वो सिंह लग्न के लोग हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल लीडर्स होते हैं। तो आप लोगों को दूसरे लोगों को से काम देके उनसे काम निकलवाना आता है, जो कि एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और आपको सितंबर के महीने में इसी क्वालिटी को इस्तेमाल में लाना है और लोगों से ढेर सारा काम करवाना है, बजाय इसके कि आप अपने पीयर्स के साथ ईगो गेम्स में उतर जाएं, जो कि समय बर्बाद करने वाला साबित होगा आपके लिए। और अगर हम बाकी ग्रहों पर भी नज़र डालें तो आपके लिए बुध जो कि धन के स्वामी हैं, द्वितीय और 11वें भाव के स्वामी हैं, वो भी लग्न स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो चाहे लग्नेश द्वितीय में बैठे या द्वितीयेश लग्न में बैठे, ये दोनों ही धन की दृष्टि से बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर आप कैश फ्लो की दृष्टि से बात करें तो 4 से 6 सितंबर का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जब आपको पैसे की आवक काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी सितंबर के महीने में। और चूंकि ये लग्न स्थान है तो आपको इस समय जितना आप एफर्ट मारेंगे उतना ही आपको काफ़ी पैसा आने की उम्मीद रहेगी खुद के एक्शंस की वजह से। और 4 से 6 सितंबर तक का समय ऐसा भी है जब आप अपने परिवार वालों के साथ बिता पाएंगे। या तो आप कहीं बाहर किसी इवेंट में जाएंगे उनके साथ, या आपके घर में कोई फंक्शन होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये समय आपके लिए परिवार के साथ बिताने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। पंचमेश गुरु आपके लिए नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये राहु के साथ युति बना रहे हैं। तो गुरु नवे भाव से पांचवी दृष्टि से आपके लग्न स्थान को देखकर आपको आपके नौकरी या व्यवसाय में स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं, और ये आपको अप्रैल 2024 तक इसी तरह का स्थायित्व देते रहेंगे। इसके अलावा गुरु की नवी दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ेगी। पंचम भाव से आप संतति देखते हैं। तो सितंबर के महीने में आपको मौका मिलेगा कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस करें, उनके साथ जो भी आपकी गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करें। तो 14 से 16 सितंबर तक का समय इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर बाज़ार से संबंध रखते हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए ये बीच महीने का समय 14 से 16 सितंबर बहुत अच्छा है। चाहे आप मुनाफा कमाने की दृष्टि से देखें या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की दृष्टि से देखें, गुरु आपके पंचम भाव को देखता रहेगा अप्रैल 2024 तक। तो जितने भी लोग संतति की प्लानिंग करने की प्रयत्न कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे संतति को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये बहुत अच्छा समय है अगर आप परिवार में किसी नए व्यक्ति को लाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो। और अप्रैल 2024 तक आपको गुरु का आशीर्वाद यहाँ पर बैठकर मिलता रहेगा। शनि आपके लग्न के लिए षष्ठेश और सप्तमेश दोनों बनते हैं, और ये अभी सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो दो चीज़ें होंगी कि यहाँ पे बैठ के शनि अपने कार्यस्थल पर आगे बढ़ने के लिए मौके प्रदान करते रहेंगे, और अगर आप नौकरी पेशा ही व्यक्ति हैं तो शनि के
दास्ता या नौकरी करना शनि के नेचुरल कारकों में आता है। शनि इन्हीं का कार्यश होता है। तो आप जितने भी लोग नौकरी में हैं उनके लिए सितंबर के महीने में जो सबसे अच्छा समय है वो है 21 से 23 सितंबर। इसके अलावा इस महीने में सूर्य और शनि की प्रतियुति होगी आपस में, और ये प्रतियुति 15-16 सितंबर तक जारी रहेगी। तो आपके अपने पति या पत्नी के साथ विचारों में मतभेद होंगे और आपके झगड़े होने की भी भरपूर संभावना है कि ईगो सूर्य बढ़ाने का काम करेगा प्रथम भाव में बैठ के, और शनि सप्तम भाव में बैठने की वजह से आपका स्पाउस आपको भाव नहीं देगा। पति या पत्नी जो भी हैं वो आपसे उखड़े उखड़े रहेंगे, तो जिसकी वजह से आपके बीच में मतभेद और भी बढ़ जाएंगे। तो इस समय में अपने पति या पत्नी के साथ झगड़ा करने से बचिए। मंगल आपके द्वितीय भाव में पूरा महीना बैठे रहेंगे, तो जितने भी लोग पेट्रोकेमिकल्स से या सुरक्षा डिफेंस सेक्टर से या फिर केमिकल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए अपने कार्यस्थल पे बहुत अच्छा समय रहेगा, और ये मंगल उनके लिए धनदायक साबित होंगे। यहाँ पे बैठने की वजह से जो एक बुरी न्यूज़ होती आती है वो ये कि मंगल आपकी स्पीच में एक अग्रेशन लेके आएगा। तो आपको अगर अपने परिवार वालों के साथ बात करना है तो बहुत सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि इस तरह का प्लेसमेंट परिवार वालों के साथ झगड़ा करवाने में बहुत घातक साबित होता है, और जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनको आपकी वाणी से बहुत तकलीफ होगी। तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए स्पीच का। आपके लग्न के लिए शुक्र दशमेश हैं और वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं पूर्ण जल राशि में, जो कि कर्क की राशि है। शुक्र की स्थिति 12वें भाव में वैसे अच्छी कही जाती है, क्योंकि ये हमेशा यहाँ से पैसे दिलाने का काम करते हैं व्यक्ति को और हर तरह का सुख प्रदान करते हैं। तो आपके लिए अगर कार्यस्थल पे देखें तो 5 से 7 सितंबर तक के समय में विदेश जाने के मौके बनते हैं, क्योंकि 5 से 7 सितंबर के बीच में शुक्र और चंद्र का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र चंद्र की राशि में बैठे रहेंगे और चंद्र शुक्र की राशि में बैठे रहेंगे। तो इस समय में आप कार्य की दृष्टि से देखें तो शायद आपकी फॉरेन विजिट इस महीने में हो पाएगी। और जितने भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हैं या फॉरेनर्स के साथ ही रह के काम करते हैं उनको भी प्रोफेशन में इस समय में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए, और ये वो दिन होते हैं जब आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालना चाहिए, लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ। तो सितंबर के महीने में आपके लगने के लिए वो दिन है 17 से 20 सितंबर, 24 से 27 सितंबर। इन 8 दिनों में आप सावधान रहिए। अभी अगर आप कुल मिला के देखें तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। जो चीज़ आपको सितंबर में ध्यान रखनी है वो खाली ये है कि पहले 15 दिनों में अपने अहम को चेक में रखिए। ईगो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरती है, और इसको आप जितना अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे उतना ये महीना आपके लिए अच्छा निकलेगा। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।